Praise the Lord, everyone. Let's start with the opening prayer. Lord my God, thank you for everything that you have done for us and everything you are going to do for us. Lord, we pray that you will bless this Sunday service of ours. What all our prayers and petitions and praise and worship be like a sweet incense which comes to heaven. Lord, the word of God that we hear today, let it manifest 100-folds in our life and we gain the fruits of the Holy Spirit. In the name of Jesus I pray. Amen. Hi everyone, I hope you all are doing well. It's such a pleasure and privilege for me to be worshipping with Jamie and Niku over here and to be worshipping with you this Sunday. So let's enter the house of the Lord with thanksgiving and praise. तो आइए परमेश्वर के भवन में आते हैं धन्यवाद कहते हुए और स्तुति करते हुए। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मेरी पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मेरी पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ते भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। मेरा प्याला
Great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. Pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. So great is your name. Great are you, Lord. It's your breath. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. We praise you, Jesus. We praise you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Praise are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. All the earth and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. And it's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Today we are starting a topical study on the church and the title of today's message is called out. आज हम कलीसिया इस विषय पर अध्ययन शुरू करेंगे और आज के संदेश का शीर्षक है बुलाए गए. First mention of the word church in the Bible is in Matthew chapter 16. कलीसिया शब्द का उल्लेख बाइबल में पहली बार मत्ती अध्याय 16 में है. इस अध्याय में यीशु मसीह अपने शिष्यों को यरूशलेम के बाहर ले जाकर उनसे प्रश्न पूछता है कि तुम मुझे क्या कहते हो. यीशु के प्रश्न के उत्तर में मत्ती 16:16 में पतरस ये घोषणा करता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र
मसीह है. In response to Jesus' question, Peter declares that you are Christ, the Son of the living God. And Jesus tells Peter that he has received this revelation from God himself. यीशु मसीह पतरस को कहता है कि ये बात तुम पर स्वयं परमेश्वर ने प्रकट की है. After this important revelation in Matthew chapter 16 verse 18, Jesus declares, "Upon this rock I will build my church and the gates of Hades shall not prevail against it." यीशु मसीह मत्ती अध्याय 16 वचन 18 में पतरस के इस महत्वपूर्ण प्रकटीकरण के बाद ये घोषणा करता है कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे. The revelation of the church here is of such importance to Christ that he pairs it with the revelation of his divinity. Upon this revelation of the divinity of Christ, the church stands. As Jesus is divine, the church is divine too. कलीसिया का ये प्रकटीकरण यीशु मसीह के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि वो अपनी अलौकिकता के प्रकटीकरण के साथ इसे जोड़ता है. यीशु मसीह के ईश्वर होने के, उसके अलौकिक होने के इस प्रकटीकरण पर ही तो कलीसिया खड़ी है. जिस तरह यीशु अलौकिक है, उसी प्रकार कलीसिया भी अलौकिक है. यीशु और उसकी कलीसिया एक साथ जुड़े हैं. Jesus is the bridegroom, the church is the bride. यीशु मसीह दूल्हा है, कलीसिया उसकी दुल्हन है. यीशु अपने लोगों के लिए कुर्बान हो गया क्योंकि हर एक मनुष्य पापी है और पाप की मजदूरी मृत्यु है. लेकिन यीशु ने उस मृत्यु को सह लिया. उसने अपनी कुर्बानी दी, अपना लहू बहाया और वो मरकर जी उठा. यीशु मसीह के इसी अलौकिकता के सुसमाचार पर हर एक सच्ची कलीसिया केंद्रित है. The belief in the gospel of Jesus Christ is at the core of a true church. So let us find out what is the church that Christ reveals in Matthew. आइए हम देखेंगे मत्ती अध्याय 16 में जिस कलीसिया का प्रकटीकरण यीशु दे रहा है, वो कलीसिया कैसी है? What is the church? When we think of the word church, we often think of a building. कलीसिया या चर्च क्या है? जब भी कलीसिया की बात होती है तो हमारे दिमाग में तुरंत से किसी इमारत का ध्यान आ जाता है. हमारी ये सोच होती है कि चर्च एक ऐसी जगह है जहां पर हम रविवार के दिन जाते हैं. ग्रीक में, यूनानी भाषा में कलीसिया के लिए जो शब्द है वो है एक्लेसिया, जिसका अर्थ है सभा या समूह या बुलाए गए लोग. द चर्च इन ग्रीक इज कॉल्ड एक्लेसिया, मीनिंग एन असेंबली और कॉल्ड आउट वंस. कलीसिया एक इमारत नहीं है परंतु एक लोगों का समूह है. So we don't go to church on Sundays, but we are the church. Not just on a Sunday, but every day of the week, every month, in every season. हम रविवार के दिन चर्च नहीं जाते, लेकिन हम चर्च हैं, हम कलीसिया हैं. सप्ताह के हर एक दिन, हर एक महीने में, हर एक ऋतु में हम कलीसिया हैं. कलीसिया तो केवल इकट्ठा होती है एक जगह परमेश्वर की आराधना करने के लिए. The church just assembles together to worship the living God. Who has called us out and from where? किसके द्वारा हम बुलाए गए हैं और कहां से बुलाए गए हैं? जो चर्च है या एक्लेसिया है, वो लोगों का समूह है. एक्लेसिया का जब उल्लेख होता है तो कभी भी उसका अर्थ एक इमारत या मिलने का स्थान नहीं था, लेकिन हमेशा एक्लेसिया का अर्थ बाइबल में होता है लोगों का समूह. ऐसे लोग जो संसार के नियम में से, संसार के रीति रिवाजों में से बाहर बुलाए गए हैं स्वयं परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर की सेवा के लिए. एक्लेसिया refers to the ones who are called out of the world society by God himself, calling them unto his service. Say after me, I am called by God. I am called out for his service. मेरे पीछे आप भी बोले, मैं परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया हूँ. मैं परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाया गया हूँ. Who are the called out ones? बुलाए गए लोग कौन हैं? Let us look at 1 Corinthians chapter 1 and verse 2. To the church of God which is at Corinth, to those who are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all who in every place call on the name of Jesus Christ our Lord,
both theirs and ours. आइए हम वचन में देखेंगे पहला कोरिन्थियों का अध्याय 1 और वचन 2। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करते हैं। जो चर्च है या जो बुलाए गए लोग हैं, वे ऐसे लोग हैं जो स्वयं मसीह के द्वारा पवित्र किए गए लोग हैं। सिर्फ एक समूह का हिस्सा होने से या किसी सभा में शामिल होने से हम बुलाए हुए लोग नहीं बन जाते हैं। कलीसिया एक समान विचार रखने वाले लोगों की एक संस्था नहीं है, परंतु ऐसे लोगों का समूह है जिन्होंने मसीह के स्वामित्व को अपने जीवन के हर एक पहलू में स्वीकारा है। परमेश्वर के लिए जो अलग हुए हैं, जो अपने विश्वास के द्वारा मसीह के साथ एक हुए हैं, अपने नए जीवन को जी रहे हैं मसीह में, अपने विश्वास को नए करने के द्वारा। इंडिविजुअली वी आर सेंट्स and collectively we are the church. Alone we cannot be called the church. अकेले व्यक्तिगत रीति से हम पवित्र लोग कहलाए जाते हैं और सामूहिक रीति से हम कलीसिया कहलाए जाते हैं। अकेले हम कलीसिया नहीं कहलाए जा सकते हैं। The place where we meet is not holy, but we are called out to be holy. जिस जगह में हम मिलते हैं वो जगह पवित्र नहीं है, लेकिन हम बुलाए गए हैं पवित्र जीवन जीने के लिए। Like I said, Peter was the first man to get the revelation in Matthew chapter 16 about Christ, who is the living God. And so God blessed him and used him on the day of Pentecost to preach the first sermon. जैसा कि हमने देखा, पतरस वो पहला व्यक्ति था जिसे मसीह के बारे में प्रकटीकरण मिला कि वह जीवित परमेश्वर का पुत्र है, और इसलिए परमेश्वर ने उसे आशीषित किया और पेंटिकॉस्ट के दिन उसका उपयोग किया पहला प्रचार करने के लिए। That is the day. Pentecost is the day when the New Testament church was born. पेंटिकॉस्ट के दिन नए नियम की कलीसिया का जन्म हुआ था। The church is made up of believers from all race, every language, every ethnicity, all those who believe in Jesus Christ, right from the day of Pentecost until Christ returns. तो चर्च या कलीसिया उन विश्वासियों का समूह है जो हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक गोत्र, हर एक राष्ट्र से आते हैं, जो यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं। पेंटेकॉस्ट के दिन से लेकर मसीह के दोबारा आने तक सारे विश्वासी उस एक्लीसिया या उस कलीसिया का हिस्सा है। चर्च जो है या कलीसिया जो है उसके दो पहलू है। चर्च हैज टू एस्पेक्ट्स, द यूनिवर्सल चर्च एंड द लोकल चर्च। दो पहलू हैं कलीसिया के, सार्वभौमिक या फिर पूरी विश्वव्यापी कलीसिया, और दूसरी है स्थानीय कलीसिया। The universal church consists of all believers worldwide who have a relationship with Jesus Christ. Anyone who believes in Jesus and who has received the Spirit of God in his life. सार्वभौमिक या विश्वव्यापी कलीसिया में वे सारे विश्वासी शामिल हैं पूरे विश्व भर में, जिन्होंने यीशु मसीह में विश्वास रखा है और जिन्हें पवित्र आत्मा उनके जीवन में प्राप्त हुआ है। There is one universal church and every true believer is a part of it. केवल एक ही सार्वभौमिक या फिर विश्वव्यापी कलीसिया है और प्रत्येक सच्चा विश्वासी इस सार्वभौमिक कलीसिया का हिस्सा है। दूसरा पहलू कलीसिया का है स्थानीय कलीसिया। A local church is a local body of believers. It is a gathering of those who believe in Jesus Christ, who meet regularly for worship, for teaching, for fellowship, prayer, and who help make disciples of other people. Just like we read in Acts chapter 2 and verse 42. स्थानीय कलीसिया यानी एक स्थानीय समूह विश्वासियों का जो यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं और जो समर्पित है नियमित रूप से मिलने के लिए आराधना, शिक्षण, संगति, प्रार्थना और दूसरे लोगों को शिष्य बनाने के कार्य के लिए। कई स्थानीय कलीसियाएं हैं। There are several local churches
and every believer should be a part of the local church for fellowship and edification. और हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है कि वो एक स्थानीय कलीसिया का हिस्सा बना रहे, संगति के लिए और आत्मिक उन्नति के लिए। कलीसिया परमेश्वर के द्वारा नियुक्त की गई एक स्थानीय मंडली है विश्वासियों के लिए, जहां पर विश्वासी एक दूसरे के प्रति भी समर्पित हैं। In a local church, we are not only committed to Christ, but we are also committed to one another. The local church is a place where we gather regularly to celebrate communion, where we receive baptism, where we receive spiritual discipline, and there's a biblical structure of leadership, where we pray together and where we give together. स्थानीय कलीसिया एक ऐसी मंडली है जहां पर नियमित रूप से हम मिलते हैं, जहां पर हम वचन के शिक्षण को पाते हैं, जहां पर हम प्रभु भोज मनाते हैं, बपतिस्मा दिया जाता है, जहां पर हम आत्मिक अनुशासन को प्राप्त करते हैं, जहां पर वचन के अनुसार एक लीडरशिप है, अगुवे हैं, और जहां हम मिलकर प्रार्थना करते हैं और जहां हम देते हैं, जहां हम अपना योगदान देते हैं। इससे बढ़कर भी कलीसिया कर सकती है, लेकिन इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जिस तरह प्रेरितों 2:42 में हम देखते हैं कि वहां पर सारे प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। So as a local church, we are called to be committed to the works that God has called us to do. तो एक स्थानीय कलीसिया का हिस्सा होने के नाते हम बुलाए गए लोग हैं ताकि परमेश्वर के कार्यों को हम करते जाएं। स्थानीय कलीसिया वो जगह है जहां पर हम अपने वरदानों को उपयोग करते हैं, जहां पर हम मसीह के आदेश को हम पूरा करते हैं। The universal church, we are a part of it, but the local church is where we fulfill the Great Commission. Hallelujah. So let me share a few things that how we are called out. What are we called out from? तो कुछ बातें मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ कि किन चीजों से हम बाहर बुलाए गए लोग हैं। We are called out from death to life, and for your study I will give you some scripture references. You can use them in your personal study. आपके अध्ययन के लिए मैं कुछ आपको वचन के रेफरेंसेस दूंगी। आप अपने व्यक्तिगत अध्ययन में इन्हें पढ़ें, इनका अध्ययन करें। तो पहला है, हम मृत्यु से बाहर बुलाए गए हैं जीवन के लिए। Ephesians chapter 2 verses 1 to 10। इफिसियों के अध्याय 2 वचन 1 से 10। यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करता है। हालेलुया। दूसरी बात, सेकंड थिंग, वी आर कॉल्ड आउट फ्रॉम डार्कनेस इनटू लाइट। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9। दूसरा हम देखते हैं, हम बुलाए गए हैं अंधकार से उजियाले में। पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 9। जब हम मसीह में हैं तो हम अंधकार से छुड़ाए गए हैं, उसकी ज्योति में हम चलते हैं। यीशु मसीह जगत की ज्योति है, और जब हम उसमें विश्वास करके चलते हैं तो हम भी उसकी ज्योति में चलते हैं। Thirdly, we are called out from impure to a holy living. 1 Thessalonians chapter 4 verse 7। हम बुलाए गए हैं अशुद्ध जीवन से पवित्र जीवन के लिए। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 7। The Bible says that at one time we were dead in our trespasses, we were dead in our sins, and we were living an unholy, impure life, but due to Christ we are made holy. Hallelujah. हम एक समय हमारे पापों में मरे हुए थे, हम अधर्मों में जी रहे थे, लेकिन यीशु के द्वारा हम बुलाए गए हैं पवित्र जीवन जीने के लिए। We are called out from Satan's kingdom into God's kingdom. Colossians chapter 1 verses 13 and 14। और अंत में हम देखते हैं, हम बुलाए गए हैं शैतान के राज्य से परमेश्वर के राज्य में। कलुसियों का अध्याय 1 वचन 13 और 14। अब हम शैतान के चंगुल से छुड़ाए गए हैं और परमेश्वर के राज्य के हम वारिस बन चुके हैं, परमेश्वर के राज्य के हम नागरिक बन गए हैं। We have been called out for salvation. God has chosen you, beloved. हमें परमेश्वर ने चुना है, हम बुलाए गए हैं उद्धार पाने के लिए उस सुसमाचार के द्वारा। यीशु मसीह अपनी कलीसिया के लिए लौट रहा है। Jesus is coming back for his church. So remain connected to the local church. इसलिए अपनी स्थानीय कलीसिया के साथ जुड़े रहें।
You are called out. आप बुलाए गए हैं. So remain in that calling. उस बुलावे में आप बने रहें. Hallelujah. In today's study on the church, we learned that we are the called out ones. We are called out by God Himself. We are sanctified by Jesus Christ to be a part of His body, the local church. आज के अध्ययन में हमने सीखा कि हम यीशु के द्वारा बुलाए गए लोग हैं. स्वयं परमेश्वर ने हमें संसार में से बुलाया है और उसकी देह का हिस्सा बनाया है. स्थानीय कलीसिया का हमें हिस्सा बनाया है. हमें पवित्र करके उस स्थानीय कलीसिया में हमें जोड़ा है. ये स्थानीय कलीसिया वो स्थान है जहाँ पर न केवल हम वचन की शिक्षा पाते हैं और प्रार्थना में बढ़ते हैं, साथ ही साथ हम प्रभु की याद में प्रभु भोज को भी मनाते हैं. वी ऑल्सो celebrate communion in remembrance of our Lord's sacrifice. In 1 Corinthians chapter 11, Apostle Paul tells how Jesus himself instructed his church to celebrate communion, to take part of the bread and the cup in remembrance of him until he returns. And he also encourages us that we need to examine ourselves before we take part in the Holy Communion. पहले कोरिन्थियों अध्याय 11 में प्रेरित पौलुस हमें सिखाता है कि किस प्रकार प्रभु यीशु ने स्वयं प्रभु भोज को स्थापित किया और कलीसिया को ये आज्ञा दी है कि उसके दोबारा आने तक उसके बलिदान की याद में हमें इसे करना है. जब हम प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं तो हमें ना केवल प्रभु के साथ हमारे संबंध को जांचना है, लेकिन एक दूसरे के साथ भी हमें अपने संबंध को जांचना है. हम मसीह की देह का हिस्सा है और हम मसीह के प्रति समर्पित होने के साथ साथ एक दूसरे के प्रति भी समर्पित है. प्रभु भोज हमारे लिए ना केवल एक सौभाग्य है लेकिन एक जिम्मेदारी है. जिम्मेदारी है प्रभु के वचनों के अनुसार चलने की और जिम्मेदारी है एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में चलने की. तो इसलिए कलीसिया, आइए हम अपने आप को जांचें. हम जांचें प्रभु के साथ हमारे संबंध को. यदि कहीं भी हमारा जीवन सही नहीं है, प्रभु की आज्ञाओं में हम नहीं चल पा रहे हैं, तो हम परमेश्वर से क्षमा मांगे और उससे अनुग्रह मांगे कि वो हमें मदद करे. एक दूसरे के साथ हमारे संबंधों में यदि कहीं भी कोई अड़चन आई है, कोई मनमुटाव आया है, तो आइए उसके लिए भी हम परमेश्वर से क्षमा मांगे. एक दूसरे के साथ हम मेल मिलाप कर लें ताकि हम योग्य रीति से इसमें हिस्सा लें. वचन में लिखा है पहले कोरिन्थियों अध्याय 11 में, यदि हम अयोग्य रीति से इसमें हिस्सा लेते हैं तो हम अपने आप पर दंड को लाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें दंड नहीं परंतु आशीष देना चाहते हैं. आइए हम रोटी और दाखरस को ले लें. ये दो चिन्ह जो हमारे लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, प्रभु को याद करते हुए, उसके बलिदान को याद करते हुए जो उसने हमारे लिए दिया है, ताकि हम उसके साथ सही रिश्ते में चल सकें और एक दूसरे के साथ भी हम मेल मिलाप में बने रह सकें. आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सिर को झुकाएंगे और धन्यवाद करते हुए पूरे आदर के साथ प्रभु की इस मेज के सामने हम आएंगे. प्रभु से हम क्षमा मांगेंगे और मांगेंगे कि वो हमें अनुग्रह दे. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस मेज के लिए, इस रोटी और इस प्याले के लिए. प्रभु यीशु के अद्भुत बलिदान को हम याद करते हैं. सबसे बड़ी कीमत प्रभु यीशु आपने हमारे लिए चुका दी ताकि हम आपके राज्य का हिस्सा बन सके, ताकि हम आपके द्वारा बुलाए जा सके, आपके साथ उस संबंध में, उस विश्वास में हम एक हो सके. आपने हमें संसार के नियमों में से छुड़ा लिया और अपने राज्य का हमें वारिस बनाया. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु. जैसे हम इसमें हिस्सा लेंगे, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आशीष दें, हमें आत्मिक आशीष दें, ताकि हम आपके वचनों के पालन में चल सकें. हमें शारीरिक आशीष दें ताकि बीमारी के जगह हम चंगाई को पा सकें. हमें मानसिक आशीष दें ताकि हम हमेशा आपकी शांति में रह सकें. और हमें सामाजिक आशीष दें ताकि एक दूसरे के प्रति हम मेल मिलाप में हमेशा चल सकें, एक दूसरे के हम प्रति समर्पित रह सके हमेशा, और आपके प्रति भी हमेशा हम समर्पित रह सके. धन्यवाद करते हुए हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं. आमीन. अब आप सभी अपने अपने घरों में
प्रभु भोज में हिस्सा लें। And now is the time to give our financial contribution, our financial seed in the kingdom of God by way of tithes, offerings or donation. और अब समय है हमारा आर्थिक योगदान, हमारा आर्थिक बीज बोने का परमेश्वर के राज्य में दशांश, भेंट या दान के द्वारा। The details for online transfer will come up on the screen at the end of this announcement. ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए आपके योगदान भेजने की सारी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी इस सूचना के बाद। I do hope that you have been blessed by today's service. Do like and share this video with others and also do post your comments in the comment section. मैं आशा करती हूँ कि आज की सभा से आप आशीषित हुए हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने लोगों, अपने पहचान के लोगों के साथ शेयर करें और अपने कमेंट्स भी जरूर लिख भेजें। We have also put up our contact number and our email ID at the end of this video. So in case you need any information or you need prayers, you can contact us. इस वीडियो के अंत में हमने हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी भी स्क्रीन पर डाला है। यदि आपको किसी भी जानकारी की आवश्यकता है या फिर आपको प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। Let us pray. Lord, I thank you for today's service. Thank you that you gave us this opportunity. Even through online means, we were able to meet and fellowship and grow in the knowledge of your word and in your kingdom. प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि ऑनलाइन जरिए के द्वारा आपने हमें ये सौभाग्य दिया, हमें अवसर दिया कि हम मिल सके, हम संगति कर सके, आपके वचन और आपके ज्ञान में हम बढ़ सके, आपकी आराधना हम कर सके और आपके राज्य में हमारा योगदान देने का भी अवसर आपने हमें दिया। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिस तरह हर एक बीज में वो सामर्थ होती है बड़ी फसल को उत्पन्न करने की, उसी तरह हमारे आर्थिक बीज में सामर्थ है आशीष की। प्रभु मैं आपकी आशीष की घोषणा करती हूँ हर एक देने वाले के ऊपर। प्रभु आपके लोगों के जीवन में आर्थिक आशीष है। प्रभु जिस तरह हमने अपना योगदान दिया है, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रभु शांति की आशीष आए, चंगाई की आशीष आए, घर में शांति और खुशहाली की आशीष आए। प्रभु हर देने वाले के काम पर आप आशीष डालें, उनके संबंधों में, उनके रिश्तों में आप आशीष डालें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी भलाई, आपकी करुणा के लिए। आज की सभा के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हर बात के लिए आपको हम आदर और महिमा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपका सप्ताह आशीषित रहे। गॉड ब्लेस यू एंड मे यू हैव अ ब्लेस्ड वीक।